ज्ञान की रोशनी से हर अंधेरा मिटा दो। ज्ञान की रोशनी से हर अंधेरा मिटा दो, सीखने की तलक से नए रास्ते बना लो। हर दिन कुछ नया सीखो, यही है जीवन का सार। हर दिन कुछ नया सीखो, यही है जीवन का सार। लाइफ लॉन्ग लर्निंग से खुलते हैं नए द्वार। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ एजिंग ग्रेसफुली विद विकास जोशी। Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. So today's topic is, friends, the benefits of lifelong learning. Knowledge knows no bounds. Learn for today to lead tomorrow. That is the basic concept. We cannot leave it because of age. No, we have to be on the learning mode only. हम ये नहीं समझ सकते हैं अपने आप को सर्वगुण संपन्न, नहीं. We have yet to improve a lot when we just look around. World is changing at a faster rate. You should be able to keep up the pace with the world, and you have the time, the important factor required for. So please develop yourself, because lifelong learning is a continuous pursuit of knowledge and skills and throughout the life, driven by personal and professional development. अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकती है आप जिस फील्ड में भी हो, उसकी एक्सपर्टीज आपके पास है, कोई भी आपको कंसल्टेंसी के लिए पूछ सकता है, आपका एडवाइस पूछ सकता है. दैट इज अ प्रोफेशनल अप्रोच. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सो लेट नॉट बी हार्पिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट. हो सकता है यू आर एक्सपर्ट, यू गॉट द नॉलेज, यू गॉट द विजडम, यू गॉट द एक्सपीरियंस. सो इट इंक्लूड्स फॉर्मल एजुकेशन जो आपने अभी तक ले लिया हुआ, self dedicated learning and experimental opportunities, helping individuals adapt to change and remain relevant in dynamic job market. You should help others with the expertise in your field. That is what you will be doing in I should say professional development बोलूंगा. हालांकि अगर नहीं भी होता है तो भी चलेगा, because many people are reluctant to join any organization after retirement or after age of 60 or after age of 58 or so. लेकिन मैं कहता हूं जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूं. हॉरिबल. I have already stated the worst word is time pass. The people who are having the time to pass for are the richest people in this world. So friends, keep yourself on the mode of learning, because you will be able to impart education, impart some guidance to others with your experience in the field, and hence you have got the weightage. So you have to be on the toes, on the learning side, to be keeping up with the changes of the world. The benefits are significant in force of personal growth, because this will help you to your personal enhance self esteem. अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है. प्रमोट्स करियर एडवांसमेंट. अब सोचा नहीं था, लेकिन आजकल दो चार लोगों ने आपको पूछ भी लिया, आपको कंसल्टेंसी के लिए पूछा भी, और आपको उसको रेम्यूनरेशन भी दे रहे हैं. नॉट बैड. फ्रीलांस मिला तो मिला, ठीक है. नहीं मिला तो ठीक है. आई एम कीपिंग माई सेल्फ एंगेज्ड. आई विल बी अवेलेबल with the latest development, because I am in the learning process. So you have to nurture curiosity, creativity, ultimately leading to greater satisfaction. That is what we are after, and understanding the world. This is what we have to imbibe in ourselves. So the important points which I have just jotted down on the benefits of lifelong learning are, it helps with personal growth. आप लर्निंग प्रोसेस में रहोगे तो पर्सनल ग्रोथ होगी. करियर एडवांसमेंट, जो सोचा नहीं था आपने, किसी लोग, किसी इंस्टीट्यूशन ने या कई ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पूछ लिया कि आप हमारे यहाँ एडवांस में लोगों को गाइड करो या करियर के बारे में कुछ सलाह दो, तो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू. यू हैव टू अडैप्ट टू द न्यू स्किल्स, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ फास्टर रेट. आपके फील्ड में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. यू शुड बी अडैप्टिंग टू योर learning skills, and you should adaptable to new skills. You should have that networking opportunities. अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, networking becomes the basic part of everything. So it enhances. ये सिर्फ networking माने, I'm not talking only of technology. I'm also talking of networking, of human networking. आपके लाइक माइंडेड पीपल को साथ में आने चाहिए, उसी फील्ड के आने चाहिए. कुछ सोच होगी जो हम एक फोर्स बन के आगे बढ़ सकते हैं. ये हो सकता है. आपको पहल करनी पड़ेगी. अगर आपके माइंड में ये चल रहा है तो चलना चाहिए.
सुबह जाके सिर्फ एक गार्डन में राउंड मार के आना, दो इट इज गुड फॉर हेल्थ, फिर दिन भर कुछ नहीं करना, दैट इज वेरी डेंजरस, बिकॉज दैट इज व्हाट द टाइम इज, दैट वो टाइम ही तो क्रूशियल है आपके लिए, बिकॉज दैट इज द टाइम दैट वैक्यूम हैज बीन क्रिएटेड ऑफ। जो समय आप पूरा दिन किसी इंस्टीट्यूशन, बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन के दे रहे थे, आप खुद के लिए देना है, तो खुद के लिए देना है तो इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोचा नहीं है कि आपके खुद की डेवलपमेंट अभी भी हो सकती है। अभी तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया था, बिजनेस के लिए काम किया था, अब खुद के लिए करना है, तो इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं? इसलिए क्योंकि सोच बदलनी है। सो कीप योरसेल्फ बिजी। सो नेटवर्किंग मतलब लाइक माइंडेड पीपल ने एक साथ आना, कुछ एक फोर्सफुल एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना, एक हेल्पफुल ग्रुप फॉर्म करना, हेल्प अदर्स, कीप योरसेल्फ एंगेज, दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव ऑन योरसेल्फ। सेटिस्फैक्शन मिलेगा, करके देखो। इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, engage in learning activities can help maintain cognitive health and prevent decline. सो अगर हेल्थ मेंटेन करनी है तो मैं कहता ही हूं कि आप एंगेज रहो, तो आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन रहेगा, मेंटल सेटिस्फैक्शन रहेगा तो फिजिकल हेल्थ रहनी है अच्छी। यू विल नॉट बी इन द ऑन द डिटोरेटिंग मोड, दैट विल लीड टू ग्रेटर लाइफ सेटिस्फैक्शन। अब अगर मैं घर में ही बैठा रहूंगा, इफ यू आर सेक्लूडेड टू और रेस्ट्रिक्टेड टू अ चेयर, व्हाट विल हैपन? यू विल बिकम अ बैगेज। शुरू में अच्छा लगेगा, हाथ में सब कुछ मिल रहा है, चाय कॉफी सब कुछ हाथ में है, बाद में फील होगा कि एक जगह पे ही बैठा हूं, बाद में प्रॉब्लम होंगे आपको खुद को, फिर सारे फैमिली को। सो यू हैव टू टेल द फैमिली मेंबर्स आल्सो, बाबा डोंट रेस्ट्रिक्ट मी ऑन माय एंगेजमेंट्स, लेट मी बी एक्टिव, लेट मी बी एंगेज्ड, बिकॉज इफ नॉट देन द प्रॉब्लम विल बी एनहांस्ड एट अ फास्टर रेट टू मी फर्स्ट एंड देन टू यू। ये जब कहोगे तो वो रियलाइज करेंगे। इतना ब्लंटली मत बोलिए। you have to convince them, and we have the capacity, the age and experience has taught us to convince। अरे धंधे के लिए कर रहे थे, बिजनेस के लिए कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे थे, इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहे थे, तो खुद के लिए नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सो क्या एक्शन है? लर्निंग गोल सेट कीजिए। एक मुझे ये सीखना, मान लो कि मुझे एक नई लैंग्वेज सीखनी है, गुड, सीख लो, enroll to the courses, read regularly। I always say that books are the best friends। सही में वक्त अच्छा जाता है, बहुत कुछ सीखते हो आप। अटेंड वर्कशॉप्स और सेमिनार्स, या आजकल तो ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल होता है, बहुत सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होते हैं, अटेंड करो, डिफरेंट लोग मिलेंगे, लाइक माइंडेड पीपल वहां पे भी मिल सकते हैं। ज्वाइन टुगेदर, यू मे फॉर्म अ न्यू ग्रुप which would be helping each other, but then helping you to get more satisfaction towards life। Join learning communities, ये अभी फैशन चल रहा है, सब जगह कम्युनिटीज है, फॉर्म नहीं है तो आप फॉर्म करो। आपने इनिशियल किसी भी चीज में पहल करनी चाहिए। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलने वाला, कोशिश मत छोड़ना, ये एंगेज रहने की कोशिश, यही आपको आगे लेके जाएगी टुवर्ड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्सेस, ये तो मैं कहता ही हूं, ऑनलाइन आपको फिंगर टिप से बहुत कुछ मिल जाता है, यूटिलाइज करो, रिफ्लेक्ट एंड अपना आप सोचो, ब्लाइंडली मत फॉलो करो कि सच्ची में ये सब करने से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इफ नॉट, चेंज द थिंग, मेनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू यू। So what actions you would like to take is choose one skill a month। एक महीने में एक स्किल चूज करो, वो पूरा करो। अब एक महीने में पूरी लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक महीने में कुछ तो सीख पाओगे अगर आपने लैंग्वेज सीखनी नहीं ऐसा तय किया है तो। शेयर रिसेंट लर्निंग ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑन द ऑनलाइन टू ऑनलाइन पीपल और योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड सो ऑन। अगर टफ कुछ प्रॉब्लम है तो लोग सॉल्यूशन देंगे, अगर मजेदार है तो लोग हंसेंगे और हम लोग साथ में हंसेंगे, क्या प्रॉब्लम है? साथ में हंसने में तो प्रॉब्लम नहीं, किसी पे हंसना बुरा है, साथ में हंसना बहुत अच्छा है। सेट अ वीकली शेड्यूल, ये हो सकता है जैसे मैंने कहा था पिछले सेशन में कि आप वीकली वीडियो कॉल करो अपने फैमिली मेंबर्स को, लोगों को मिलो। आजकल तो सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है आपको। सीख ऑनलाइन ग्रुप्स, मतलब लोकल में ऐसे ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं जो ऑनलाइन पे भी प्लेटफॉर्म है
जहां दे लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ऑफ हेल्पिंग अदर्स। जैसे एनजीओ एनजीओ होते हैं वैसे लोग। एक्सप्लोर एटलीस्ट वन न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग दिस वन। तो एक एक्सप्लोर को इतना सारा ऑनलाइन है, आप एक्सप्लोर करने बैठोगे भी तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो एक्सप्लोर करो, उसमें से आपको कौन सा सूट करा है उससे ज्वाइन कीजिए, नहीं लगा छोड़ दीजिए। यू हैव टू वेरीफाई ऑफ कोर्स द क्रेडेंशियल्स। अब बाकी सारा आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आजकल, बाकी आपको सब आपके बच्चे ही बता देंगे। पहले उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा, यू बीइंग एंगेज विल बी फ्रूटफुल फॉर देम आल्सो एंड फॉर यू आल्सो। सेट अ मंथली रिफ्लेक्शन टाइम टू इवैल्यूएट योर लर्निंग प्रोग्रेस। तो मंथली आप रिफ्लेक्ट करो, एक दिन में आप रिफ्लेक्ट करोगे नहीं नहीं मेरे को अभी नहीं अच्छा लगा, ये मत करो। वीकली बोलोगे नहीं, वीकली भी इज अ शॉर्टर पीरियड। मंथ आई शुड से इट इज अ बिगर पीरियड ऑफ 4 वीक। तो 4 वीक का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? क्या आप डेवलप हो रहे हो? क्या आप लर्निंग प्रोसेस में अपने आप को ढाल रहे हो? क्या आप एंजॉय कर रहे हो? क्या आप सेटिस्फाइड हो? ये हमको करना है। व्हाई? बिकॉज ज्ञान की रोशनी से हर अंधेरा मिटा दो, सीखने की ललक से नए रास्ते बना लो, हर दिन कुछ नया सीखो, यही है जीवन का सार। लाइफ लॉन्ग लर्निंग से खुलते हैं नए द्वार। So I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. Meet again. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.